दिसंबर से लेकर के मार्च तक बिना कोई एड स्पेंड के वी जनरेटेड more than 60 lakh rupees in sales. So Taste of Mithilanchal becomes our core pillar around which we build this brand. About every brand has a core story behind it. तो let's say founders ने वो business क्यों start किया? I think start with why. The way Simon Sinek articulates it is a very powerful tenet in that sense. So, Aishwarya, welcome to the marketing podcast. We would love to host you and we will be discussing so many things about. सबसे पहले झाजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. आपका मेंच जो इतना प्यारा वेंचर पार्टनर है, इसके साथ में और कपल ऑफ ब्रांड्स और जर्नी आपकी मार्केटिंग में कैसे रही है. वी विल डीप डाउन इनटू दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. So, All right, great. Yeah, Mike. Looking forward to it. okay, let's start. So, मेंश क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअल में ब्रांड्स को कैसे मार्केटिंग में सॉल्व करता है. व्हाट आर दोस यूनिक थिंग्स दैट सॉल्व्स. So, Mensch Ventures, the word Mensch itself means a person of honor and integrity. We felt we started the business to fundamentally do good, and the way it has morphed over the time is हम लोगों ने about a year in ये decide किया था कि we'll be working exclusively with brands that are purpose driven, and they're trying to advance one or more of these sustainable development goals as set out by the UN. So those two philosophies and do it in a conscious manner. So these two philosophies have informed everything that we do. We have typically since 2017 we have worked with small upstart brands, typically around zero or first lakh rupees sales mein, we have joined in. For the first 4 years or so, we did this as an agency of record, which means हम लोग उनका starting from paid media to content to email, everything we were looking after. We often did it with in-house teams. तो brands के पास typically team में या तो कोई creator या writers या एक performance marketer होता था, and we typically came on board guiding them around strategy and tactics and of course lending a hand, helping hand wherever possible. आज की डेट में बेंच का almost 95-98% work is focused on building up Jhaji store. So Mensch Ventures का goal है to build out cultural brands from India and spreading the prosperity to more pin codes. तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी अभी in its metro towns बसी हुई है. Delhi, Mumbai, Bangalore to begin with, and then Hyderabad, Pune, to an extent Ahmedabad and Jaipur. But I would still say tier 2, tier 3 towns mein this prosperity hasn't gone further, and we feel that in a country that is so diverse in its food, fashion, so there needs to be many more brands that can come out. एंड उन ब्रांड्स को बिल्ड आउट करने के लिए और उन ब्रांड्स के अराउंड खासकर जो कल्चरल स्टोरीज को इंडिया की कैरी कर सकती हैं, ऐसी ब्रांड्स को बिल्ड आउट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं. एंड आवर फर्स्ट main project or key project is Jhaji Store, which is about selling homemade pickles and chutneys to begin with, and essentially representing the taste of a small district in Bihar called Mithilanchal, which is the north. I would say north. It falls north about 100 kilometers northeast of Patna and shares a border with Nepal, and that's what we are focused on. In terms of marketing services, हम लोगों का most of the experience रहा है paid media में. हम लोगों ने performance marketing किया and paid social for the most part. So how do you build up a brand, run profitable campaigns for them to begin with, and वहाँ से आप लोग पहले early revenues कैसे लाते हो, और एक बार वो कस्टमर रिक्वायर हो जाता है तो हाउ डू यू एंगेज देम इन पोस्ट परचेज जर्नीज, हाउ डू यू encourage repeat purchases from that customer through email, through WhatsApp campaigns, through content on your social media and blogs. Those are a few things that we typically help with. So that's Mensch Ventures in a nutshell, which is about building cultural brands from India and taking India's prosperity to more zip codes than just the top 3 or top 5 cities. So more or less it's an agency, if I'm not wrong. It started out as an agency. आज की डेट में हम लोग इसको build up करना चाहते हैं as a operator
holding company. So जैसे झाजी स्टोर में हमारे पास equity stake है in more businesses that we start down in the future. We would continue to have these minority and maybe sometimes even majority shareholding in the business. And everything that we are learning along the way, we are making that available in form of marketing services through an agency business. That's right. गॉट इट सो एज यू सेड कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं मेंस वेंचर्स के अंदर, झाजी से लेकर के और बड़े और छोटे ब्रांड्स। सो उसके बोर्ड के अंदर रहना और एज एन मार्केटर एक ना अलग अलग ब्रांड को लेकर के अलग अलग पोजीशनिंग होती है। सो वो चीज़ अपन कैसे मैनेज करके रखते हैं कि अच्छा इस ब्रांड के साथ इस तरीके की मार्केटिंग, इस ब्रांड के साथ इस तरीके की मार्केटिंग। सो हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये ब्रांड इस कंज्यूमर पेज के अंदर लाइक करता है, ये ब्रांड इस कंज्यूमर पेज के अंदर लाइक करता है। सो अगर एक अपन एग्जांपल लें कि कल को अगर एक नया ब्रांड आता है झाजी के जैसा ही, बट वो पिकल्स ही बेच रहा है, तो हाउ वुड यू पोजीशन, राइट? दैट इज अ Mhm. बिगेस्ट थिंग दैट अ मार्केटर शुड अंडरस्टैंड कि डिफरेंट पोजीशनिंग कैसे हम आइडेंटिफाई करें। सो हाउ यू डू यू आइडेंटिफाई एज यू wear hats of co-founder multiple boards, so like आप वो राइट। कैसे करते हैं? तो एक क्विक करेक्शन वहाँ पे कि अभी आज की डेट में हमारा 95-98% वर्क इज फोकस्ड ऑन झाजी स्टोर. वी डू नॉट हैव मेनी मोर brands to work with right now, but yes, I mean we assume these positions earlier in other businesses in food, fashion and home goods categories. To your question of how do you build out a positioning या marketing और brand building के around आप कैसे सोचते हो किसी भी एक product category में? From where we see it, it is about every brand has a core story behind it. So let's say founders ने वो business क्यों start किया? I think start with why. The way Simon Sinek articulates it is a very powerful tenet in that sense. तो it is about self discovery कि आपने वो business क्यों start किया, क्यों वो क्या motivation थी, what is the impact that you're trying to create, what are the stakeholders that you're building it for. I think those are some of the fundamental questions there around which this business starts. So Jhaji Store के case में, for example, Kalpana ji started this business out of her passion for making homemade pickles. जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि कोविड के अराउंड रियलिटी ये थी कि वी नीडेड टू पीपल वर लूजिंग जॉब्स एनीवे. बिहार से पिछले 4-5 डेकेड्स में बहुत आउटवर्ड माइग्रेशन हुई है. Everybody who wants to make a mark has left Bihar to build a career and pursue education elsewhere. तो and इसकी वजह से होता है कि they are separated from their families and it creates like a friction in the way they can run the business. So our idea with that was also to create local jobs, keep the business as much as possible in Darbhanga and Mithilanchal in Bihar, and create local prosperity there. So those were two things. Then I would say what we champion in form of these homemade pickles is a taste of Mithilanchal. हम लोगों ने मार्केट में ये भी देखा कि अगर आप अचार चटनीज का पूरा आयल देखोगे तो ईस्टर्न इंडियन फ्लेवर्स लार्जली मिसिंग है. जितने भी आपके पास अचार हैं आपको पंजाबी अचार खूब मिल जाएंगे. आम का अचार इज वेरी पॉपुलर. उसके अलावा बेसिक अचार रहते हैं नींबू का, मिर्ची का. These pickles are something that you find everywhere, but I would say Bihari achar, which is, let's say, Ol ya Suran ka achar, was one thing that I learned after we dove into Jhaji store. Suran is elephant yam, and it's a vegetable that is popular in Bihar, and uska achar banaya jata hai. Then Karonde ka achar, Amra, which is a hawk plum. ये एक ऐसा फ्रूट है जो बिहार, झारखंड, बंगाल बेल्ट में ज्यादा मिलता है. तो अगेन ये कुछ ऐसे फ्लेवर्स थे जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं थे. एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी आर ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग कि मिथिलांचल में क्या चीजें खाई जाती हैं, क्या किस तरीके से अचार बनाए जाते हैं, किस तरीके से खाना जनरली कुजीन सर्व किया जाता है. तो टेस्ट ऑफ मिथिलांचल बिकम्स आवर कोर पिलर अराउंड विच वी बिल्ड दिस ब्रांड. Creating local jobs is another purpose that is central to how we do things, and that is what I mean by when I say कि आपको जब आप brand की positioning सोच रहे हो तो these are a few things that you need to go back to. कि why have you started the business, what is that genuine customer insight that you're building this brand around, and आप कौन-कौन से stakeholders के लिए क्या value drive करना चाहते हो. तो जैसे अब जो लोग बिहार से निकल गए हैं उनके लिए इट इज अबाउट फ्लेवर्स दैट दे हैव लॉस्ट टच ऑफ.
और उनको घर से दूर घर जैसा स्वाद मिलता है. लोकल people को they find more meaningful employment. People who typically work at Shaji store earn 40-50% better than anything that they can find elsewhere. So that is another group of stakeholders that we want to empower. And this is how that brand has a unique positioning, and this reflects in all of our communication. तो उसके बाद फिर आप चाहे ads बना रहे हो, चाहे emails लिख रहे हो, चाहे blogs लिख रहे हो, these are the stories that you are going to talk about. मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कल को अगर मैं झाजी जैसा सेम स्टोरी लेकर के आ जाता हूँ मार्केट के अंदर, बट वो झाजी जैसा नहीं होगा. अगर कोई दूसरा कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से स्टोरी उठा करके सेम सेट ऑफ स्ट्रेटजीज लेके मार्केट के अंदर पुश करना चालू करता हूँ. सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी कि झाजी विल गो अपराइज और माय ब्रांड विल गो अपराइज? कम्युनिकेशन से देखो वो हो जैसे रहा है. सो वो एक मार्केटर के मैं दिमाग में ना चैलेंज होता है कि अच्छा अपन ये कैसे आइडेंटिफाई करें कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग स्टडी करके. फिर लोग क्या करते हैं, मार्केटर्स क्या करते हैं, वो स्ट्रेटजीज कॉपी करने लगते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स की, बट वो इवॉल्व कैसे करें या फिर वो जो स्ट्रेटजीज हैं उसको अपन मोल्ड करके हमारे हिसाब से कैसे बनाएं. व्हाट आर दोज थिंग्स और की पॉइंटर्स जो हमको हमारे दिमाग में रखने चाहिए? राइट. तो देखो मार्केटर्स कॉपी करते हैं. आई मीन गैरी वेनरचक की एक फेमस लाइन है, मार्केटर्स डूइंग एवरीथिंग. हर टेक्निक को लोग इतना कॉपी करते हैं कि इट इज कॉपीड इनटू ऑब्सोलेसेंस. मतलब इतना हर जगह जब वही चीज दिखने लग जाती है तो कस्टमर भी इम्यून हो जाता है उस चीज के लिए. तो वो दैट इज आई वुड से अ फैक्ट ऑफ लाइफ व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग वर्ल्ड, कि आप अगर मार्केट में एक इनोवेशन ला रहे हो, पीपल विल कॉपी इट एंड स्टील इट व्हेन दे कैन. तो अब इस केस में फॉर इंस्टेंस कोई और ब्रांड अगर एक डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से सिमिलर स्टोरी पे बिल्ड आउट करता है, जैसे एक कंपनी है स्वीट करम कॉफी आउट ऑफ साउथ इंडिया, फायरसाइड वेंचर्स हैज रिसेंटली फंडेड देम. अब ये लोग केरला के अराउंड, इफ आई रिमेम्बर इट राइट, केरला साउथ इंडियन कुजीन के अराउंड दे आर बिल्डिंग दैट ब्रांड. आईडी फूड्स का एग्जांपल लेते हैं. अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट idli dosa batter se they started, and they are again championing a South Indian flavor itself. I would say you can obviously use these same principles, but जो चीजें यूनिक रहेंगी एक मार्केटर को आप स्टील कर रहे हो, लेकिन उसको जैसे आपने कहा कि अपने कॉन्टेक्स्ट में अडाप्ट करने की जरूरत होती है. एंड उसके लिए क्या जरूरी है कि यू आर वेरी ग्राउंडेड इन अगेन व्हाई यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस. आपके बारे में यूनिक क्या है. मार्केट में अगर आप चीजें यूनिकली नहीं दोगे तो आपके लिए और आपके कंपेटिटर दोनों के लिए वो प्रोडक्ट कमोडिटी बन जाता है. कमोडिटी बन जाने का मतलब है कि प्रोडक्ट की प्राइस नीचे गिरती चली जाएगी एंड मार्केट में लोग सस्ते सस्ते प्रोडक्ट की तरफ ग्रेविटेट करेंगे, और फिर उसके बाद ना आपके पास मार्जिन बचेगा ना किसी और के पास मार्जिन बचेगा. तो इट्स नॉट इन योर इंटरेस्ट, इट्स नॉट इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड इट हेल्प्स टू स्पेंड सम टाइम just to focus on what is that unique thing that you are building out into the market. मार्केट में मतलब सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पॉइंट नहीं है. पॉइंट ये है कि आप इस बिजनेस के साथ आप यूनिक क्या करना चाहते हो, ऐसी क्या चीजें हैं जो सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता. अचार की कंपनीज अभी आज की डेट में भी टॉप्स, नाइलॉन्स, मदर रेसिपी सब है, राइट. पर ये अचार डिफरेंट तरीके से बना रही हैं. हमारा अचार बनाने का तरीका था कि हम घर जैसा स्वाद डिलीवर करना चाहते हैं. हमें नहीं बनाना है फैक्ट्री में, हमें नहीं डिलीवर करना है रेट से सस्ता. एंड वी वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ मिथिलांचल alongside selling these pickles as well. तो those are like unique things that we want to do about it. Eastern Indian flavors जैसे मैंने कहा वो एक unique contribution है. अब सेम चीज अगर आप लेट से पंजाब के किसी रीजन से कहानी निकाल के आते हो तो वो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही आई वुड से ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कैटेगरी है. सब लोग अभी पंजाबी पिकल्स या फॉर दैट मैटर राजस्थानी पिकल्स का अपना नाम है. Right. उसमें लेकिन आपके पास यूनिकनेस कहाँ से आएगी कि आप राजस्थान के लेट से कौन से रीजन से आ रहे हो, आपके प्रिपरेशन क्या है, आपके फाउंडर्स की स्टोरी क्या है, क्या मोटिवेट किया आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. क्या ये चीजें कंज्यूमर को एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैटर करती है सही में? आई थिंक यस. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप झाजी स्टोर में हमारे पास जब हम शार्क टैंक इंडिया पे आए, वो स्टोरी सबसे पहली बात हमारा नेक्स्ट यही था. सो मतलब झाजी कैसे शार्क टैंक पे आया, उसकी बैक स्टोरी आप हमें बताइए. फिल्म करता हूँ. तो झाजी स्टोर हमने जब स्टार्ट किया, हमने जुलाई 2021 में सेल करना स्टार्ट किया था अचार. एंड आई थिंक अगस्त या सितंबर में शार्क टैंक इंडिया की फर्स्ट सीजन की एप्लीकेशंस ओपन हुई थी. तो उसमें भी टिपिकली पहला राउंड में यू सबमिट अ फॉर्म जिसमें बेसिकली यू आर टेलिंग द स्टोरी, हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस, किस स्टेज पर है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो.
again there are a bunch of questions that you answer. Again, fundamentally telling your story, telling about the business model, telling about the founders, telling why you are doing it, डिफरेंशिएशन क्या है. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सबमिट करी. एंड आई थिंक उसके बाद फिर सेकंड राउंड होता है आपका कि दे कॉल यू फॉर अ रीजनल इंटरव्यू. उसके बाद वो रीजनल इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हो तो फिर जो भी नेशनल लेवल पे टेलीवाइज जो सेक्शन है दैट इज डन इन मुंबई. इन मुंबई, ओके. तो हाँ, तो ये 3 स्टेजेस में होता है. हमारे केस में हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी, उससे शॉर्टलिस्ट होकर दिल्ली में एक राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए जहाँ पे कल्पना जी उमा जी ने प्रेजेंट किया था बिजनेस को, एंड सेम वहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे तो बॉम्बे में बुलाया गया था. एंड अ कोर पार्ट ऑफ व्हाई दैट स्टोरी स्टूड आउट, आप पहले सीजन में अगर ब्रांड्स को देखोगे तो देवर आई वुड से वेरी फ्यू इफ एनी brands that were about building a business in a small town of Bihar, right. And especially being done by 2 women homemakers जिन्होंने पहले कभी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया. तो दैट वाज द यूनिक थिंग. अगेन तो वही कह रहा हूँ कि जितने आपकी स्टोरी यूनिक है, सोनी टीवी को भी सोनी टीवी सॉ दैट आइडिया, सॉ दैट कर्नल, एंड उन्होंने फिर उसके अराउंड पूरी पोजीशनिंग बनाई कि दरभंगा की ननद भाभी की जोड़ी अचार का बिजनेस स्टार्ट कर रही है. तो ये स्टोरी ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड द इंडियन मास कंज्यूमर बेटर, तो वो इसको एंगल को अच्छे से स्पॉटलाइट डाल पाए थे. बट आई वुड से जैसे जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो जिन यूनिक चीज़ों के अराउंड हमने बिजनेस स्टार्ट किया दैट मैटर्ड अ लॉट. That was fundamental to our success on Shark Tank India. That is fundamental to our success even on paid ads. जब मैं ads में कल्पना जी is talking about how she is making achar in Maithili, in Hindi, that resonates much better than anybody else who can sell the product. मैं कितना भी polished फोटो शूट या वीडियो शूट करवा लूँ, एक अच्छा खासा टीवीसी एड बनवा लूँ. इनफैक्ट हम लोगों ने टीवी एड्स बनवा के हॉटस्टार पे चलाए भी हैं, बट दे फॉल फ्लैट. पॉइंट है कि हमारा जिन एड्स में कल्पना जी एंड उमा जी आर टेलिंग देयर स्टोरीज and showing people exactly how they are doing things, those ads, those stories fundamentally resonate better. It drives performance on your paid media campaigns much better, and also helps you earn like a lot of free media coverage, which was Shark Tank and all of the other press interviews that happened. अगर आप उसमें भी देखो फर्स्ट सीजन में जब झाजी स्टोर शार्क टैंक पे आया था, वी गॉट रिजेक्टेड, वी वर नॉट फंडेड दैट टाइम. पर लेकिन उसके बावजूद पीपल फाउंड दैट कि यार ये स्टोरी में दम है, एंड शार्क्स आर रॉन्ग इफ दे हैव नॉट फंडेड इट. इनफैक्ट वी रिसीव्ड सो मच रिस्पॉन्स की आप क्राउड फंडिंग कैंपेन चालू करो, आप एंजल इन्वेस्टमेंट कैंपेन चालू करो, हम लोग फंड करेंगे. एंड दैट इज हाउ द काफी अच्छा स्टोरी दैट इज. तो इनफैक्ट लाइक आई थिंक वेलोसिटी करके आरबीएफ कंपनी है, उनके फाउंडर अभी, हाँ, तो उनके फाउंडर अभिरूप ने यही मैसेज लिखा कि अगर शार्क्स नहीं पैसा दे रहे तो हम वील अंडरराइट दिस, एंड दैट इज आवर फर्स्ट लेट्स से एक्सटर्नल कैपिटल केम इनटू द बिजनेस. उसके बाद हम एंजल राउंड इन्वेस्ट कर रहे थे. अगर विनीता जी से भी कहानी सुनोगे आप तो पहले सीजन के बाद अभीश मैथ्यू के साथ एक इंटरव्यू में अभीश ने पूछा कि आपको अगर कोई रिग्रेट है, सबसे पैनल में पूछा, तो विनीता जी मेंशन कि हर मदर ऑर्डर्ड द पिकल आफ्टर द शो, आफ्टर द एपिसोड एयर्ड, एंड उसके बाद फिर उन्होंने, हम लोग हर जब कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो हम लोग ईमेल पे एक सीरीज ऑफ ईमेल्स भेजते हैं पोस्ट परचेज की, जिसमें कि अगेन व्हाट इज दिस, आप लोगों ने कहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, हम ब्रांड के बारे में बताते हैं, हम दोनों फाउंडर्स के बारे में बताते हैं, हमने अचार कैसे बनाया है, उनमें क्या यूनिक बातें हैं उसके बारे में बताते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या फ्लेवर किया है उसके बारे में यूनिक चीज़ें होती हैं. तो ये सीरीज ऑफ 3 to 5 emails हैं which again talk about or give people reasons to connect with the brand. And again, this is what resonated with Vinita ji that led to her investment into the business. So I would say again, these stories, जितना आप uniqueness पे focus करोगे अपने and let it shine, it is going to reap dividends in more ways than one. तो आपको tactically तो फायदा होगा ही कि मतलब आपके sales pitch उतनी stronger होगी, लेकिन you also get especially if you're trying to do good and larger good in the world, that story will be picked up by lot many more people than you can imagine. मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग कि शार्क टैंक को नहीं मिला, मतलब सॉरी, इट्स अ ग्रेट थिंग कि झाजी को एपिसोड में नहीं मिला, बट वो बाद में आके मिल गया बिकॉज ऑफ दैट पावर ऑफ स्टोरी जो हमने definitely got. So फर्स्ट सीजन में हमें मिला था 50 लाख रुपीस. हमारे पास दिसंबर से लेकर के मार्च तक बिना कोई एड स्पेंड के भी अर्नड, वी जनरेटेड मोर देन 60 लाख रुपीस इन सेल्स. तो इट वाज मच मोर देन व्हाट वी आस्क्ड फॉर ऑन द शार्क टैंक, इट्स ऑन द टैंक इटसेल्फ. एंड ऑफ कोर्स लाइक, और उसके अलावा जितनी हमें फ्री प्रेस कवरेज मिली आज की डेट में भी, मतलब पीपल नो झाजी स्टोर ऑन अ नेशनल लेवल बिकॉज ऑफ दैट.
I think that उसकी वैल्यू और भी ज्यादा है than the एब्सोल्युटली, cash that. एब्सोल्युटली, मतलब मेरा भी पॉडकास्ट लेने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है कि और झाजी की स्टोरीज में सुनता रहूं बस। But yes, no, but let's talk more about marketing. Let's deliver value there. मतलब Yeah. बहुत अच्छा है। आई मीन दिस इज द मेन थिंग, हर एक मार्केटर्स को यही समझना चाहिए कि इफ आई एम गेटिंग दैट वाइब और एनर्जी फ्रॉम अ ब्रांड, वो वाइब और एनर्जी बनाना ही एक मार्केटर का सबसे बड़ा टैलेंट होना चाहिए। हम्म। राइट। एंड सरप्राइजिंगली ना, मतलब उसकी तरफ क्रिएट, मतलब आप ऐसे सोचोगे कि मेरे को एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वी कुडंट हैव इंजीनियर्ड दिस, ये चीजें हमारे दिमाग में पहले से ये नहीं था कि हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे। व्हाट वी ओनली डिड इज, आपके हाथ में क्या है, दैट यू थिंक अबाउट योर स्टोरी एज डीपली एज यू कैन एंड देन कम्युनिकेट इट एज पावरफुली एज यू कैन। उसके बाद उसके इम्पैक्ट क्या होंगे ना, जैसे कि गीता में कहा जाता है कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज focusing on your uniqueness and figuring out what is it that what is that unique value that you can build, create in the ecosystem for your customers, for your employees, for your investors, and उस story को आप powerfully confidently बताओ। उसके बाद जो dividends आएंगे you'll reap them anyhow, and एब्सोल्युटली, just. एब्सोल्युटली, मतलब मार्केटिंग में ऐसा है कि एक आ जाता है कि जो आपकी पर्सनल वैल्यूज होती हैं, एज यू टेक कोट फ्रॉम गीता, राइट, एंड आई कैन सी कि वैल्यूज बहुत अच्छी हैं एज अ मार्केटर, एज अ पर्सन। सो ये जो वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं इन मार्केटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स। सो वो ऐसी क्या क्या चीज़ें वैल्यूज होनी चाहिए, या फिर what are those some personal values or beliefs that guided you making some entrepreneurial decisions or marketing decisions? um, तो देखो, जब बिजनेस छोटा होता है, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, योर बिजनेस एंड योर पर्सनल और एंड योर पर्सनालिटी आर वेरी सिनोनिमस। स्पेशली आप इस तरीके से देखो, बिजनेस इज अ सम ऑफ एवरी पीपल हु इज इन देयर। तो जो वैल्यूज, एंड स्टार्टिंग में जब आप ही स्टार्ट करो या चार लोग और ही स्टार्ट करें, तो आप चारों लोगों का जो कॉमन वैल्यूज होंगी, दैट इज व्हाट द ब्रांड इज गोइंग टू बिल्ड अराउंड। उसके बाद जैसे जैसे और लोग आते हैं, यू कैन प्लान एंड इंजीनियर इट टू सम एक्सटेंट कि मेरे बिजनेस का कल्चर क्या है और मैं किस तरीके के लोगों को टीम में ला रहा हूँ, एंड व्हाट आर दे, हाउ दे रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस। बट आई वुड से व्हेन द बिजनेस स्टार्ट्स आउट, योर पर्सनल वैल्यूज डीपली इम्पैक्ट कि आपका ब्रांड किस तरीके का बनेगा। क्या वैल्यूज आपके लिए मैटर करती है, जैसे अब अगेन झाजी स्टोर के कॉन्टेक्स्ट में कल्पना जी इज द सोल ऑफ द ब्रांड। तो कल्पना जी जिस तरीके से बात करती हैं, दैट कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स इन आवर कस्टमर सर्विस एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसे एक फंडामेंटल टेनेट है प्रोडक्ट के अराउंड कि जो चीज़ हम घर पे खुद खा सकते हैं, सिर्फ वही हम बाहर सर्व करेंगे। तो इट मैटर्स कि हम प्रोडक्ट क्वालिटी उसी लेवल पे मेजर करें, हर एक लेवल पे। पूरे प्रोडक्शन में 3 लेवल पे क्वालिटी चेक इसी इसी तरीके से होता है। हर अचार का फाइनल जार पैक होने से पहले टेस्टिंग की जाती है एक सैंपल बैच की, कि लाइक मतलब वो टेस्ट ऐसा है कि नहीं जो हम लोग घर पे दें। और प्लस ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट जो हम चूज कर रहे हैं, जब हम सोर्स कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, तो सब्जी या मसाले उसी तरीके से खरीदे जा रहे हैं जिस तरीके से आप अपने घर के लिए खरीदोगे, उन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। जब हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो इट इज अबाउट सर्विंग देम। अगर घर में आपके कोई गेस्ट आ रहा है, तो आप किस तरीके से उसके लिए बात करोगे, किस तरीके से उन्हें चार्ज सर्व करोगे, वही चीज हम कस्टमर सर्विस टीम को इन्फॉर्म करते हैं। लाइक दैट इज हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद आवर कस्टमर्स। झाजी स्टोर में जैसे जी वर्ड लगाना, अगेन एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट की का भाव है। तो दैट वैल्यू शुड रिफ्लेक्ट इन एवरी कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन में आप टिपिकली देखोगे, हर केस में वी एड्रेस पीपल एज नमस्ते मयंक जी, फॉर एग्जांपल। लाइक दिस इज अ वेरी कोर वैल्यू दैट हैज बीन ड्रिवन इनटू द कस्टमर सर्विस प्रोसेसेस एज मच एज पॉसिबल। जितने टेम्पलेट्स हैं इन चीज़ों के अराउंड बनाए गए हैं। अगर हमारे ईमेल कम्युनिकेशन होते हैं, वेदर दैट्स टू आवर इन्वेस्टर्स और टू कस्टमर्स और टू एम्प्लॉइज, इसी तरीके से दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट। तो आई वुड से जो जो ये पर्सनल वैल्यूज हैं कल्पना जी की, ऑफ होम मेकर, ऑफ ऑफरिंग द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, घर जैसी हॉस्पिटैलिटी, प्रोडक्शन, अचार बनाने का काम जिस तरीके से अपने घर में अपने लिए खाना बनाया जाता है, उसी तरीके से कस्टमर्स के लिए बनाना इस स्केल पे। Those are the values that I mean. These are some examples in which this informs the I would say the way we do business.
मतलब कोर एज एन मार्केटर और एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी कोर वैल्यूज एकदम डिफाइंड होनी चाहिए, विच रिफ्लेक्ट्स द थिंग्स. उसके बाद राइट, उसके बाद आपको जब आपने, तो आई वुड से फर्स्ट स्टेज पे व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, इट हैज टू बी अबाउट बीइंग हु यू आर एज ऑथेंटिकली एज पॉसिबल. एंड उसके बाद वंस यू फाइंड नोट दैट इज रेजोनेटिंग वेल विद कस्टमर्स, तो उस केस में फिर आप ये नोटिस करते हो कस्टमर फीडबैक के तौर पर कि उन लोगों को क्या पसंद आ रहा है. तो जैसे बहुत सारे लोगों ने शुरू में बोला कि हमारे को घर से दूर घर जैसा स्वाद मिल गया, दैट वाज अ वैल्यू दैट वी आल्सो वांटेड टू डिलीवर, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव रिटेन. देन लोगों ने कहा कि इनसे बात करके बहुत अच्छा और अपनापन महसूस होता है अगर कस्टमर से मैं फोन पे बात करता हूँ या चैट पे बात करता हूँ. दैट इज अगेन हॉस्पिटैलिटी का स्टैंडर्ड, दैट फॉर्म्स अ पिलर ऑफ व्हाट वी डू. तो आई वुड से फर्स्ट लाइक बी as authentic as possible, and then just listen very closely to what your customers have to say about you. In front of you, behind you, आप लोगों के रिव्यूज देखिए, इंडिपेंडेंट जो लोग जाके प्रोडक्ट रिव्यूज कर रहे हैं या ब्रांड के बारे में जो लिख रहे हैं, what are they talking about? It's not about the mentions that you generate. So for example, इन्फ्लुएंसर्स के केस में आप क्रिएटर्स के साथ काम करते हो, तो एक केस है कि मैं क्रिएटर्स को प्रोडक्ट देके सीड करता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट दिया एंड यू कैन से वट एवर यू वांट टू से एंड वील लिसन टू दैट, बट दैट इज स्टिल इन अ वे इन्फ्लुएंस्ड. हमारे केस में बहुत रेगुलरली होता है कि पीपल आर ऑर्डरिंग ऑन देयर ओन एंड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन देयर यूट्यूब चैनल्स एंड इंस्टाग्राम चैनल्स ऑन देयर ओन. So that is, and just listening to that feedback helps. And it is not all positive feedback necessarily. हमेशा किन चीजों पे आप fall behind कर रहे हो, वो चीजें भी customers are very vocal to नेगेटिव tell. फीडबैक्स झाजी को लेके क्या है, क्योंकि अभी तक मार्केट में हमने कभी सुना नहीं है. व्हाट आर नहीं, दोस नेगेटिव थिंग्स? नेगेटिव फीडबैक फॉर इंस्टेंस हमारे पास कुछ केसेस में जब हमारे पास शुरुआत में हमारे पास पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं थी, ओके. तो ब्रेकेज लीकेज इसके केसेस आते थे. बट टेस्ट को वो लेके नहीं क्यों आ आया. रहे थे? टेस्ट को लेके मैं बताता हूँ आपके पास क्या है. टेस्ट को लेके आता है कि अगर लेट से जिस तरीके से बिहार में अचार बनाए जाते हैं टिपिकली ये ज्यादा स्पाइसी होते हैं एज अपोज टू अगर नींबू का अचार है फॉर एग्जांपल, लेमन मिक्स इज मोर स्पाइसी देन अ टिपिकल खट्टा नींबू का अचार जो आप कहीं और गॉट पे इट. खाओगे. कई बार लोग ऐसे नींबू का अचार ऑर्डर किया लेकिन वो ज्यादा स्पाइसी निकला. पर उस केस में हमारा रिस्पॉन्स ये रहता है कि देखिए हमारे यहाँ नींबू का अचार इस तरीके से बनता है, वी आर सॉरी कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और आपको डिलीवरी हुआ. आपको अगर खट्टा पसंद है तो हम आपको दूसरा अचार भेज दे रहे हैं एंड वी डोंट वांट यू टू लाइक जस्ट बी ये अगर हमारी तरफ से मिसकम्युनिकेशन में गैप रहा कि ये स्पाइसी ज्यादा है और खट्टा कम है, तो आप दूसरा वाला अचार लीजिए जो कि खट्टा ज्यादा है एंड आपके टेस्ट पैलेट को ज्यादा सूट करेगा. So again, this is how we would follow up on that negative feedback. गॉट Then इट. pricing पे हमारे पास शुरुआत में जब हमने अचार लॉन्च किए थे, we were selling a 250 gram jar for 249 rupees or 299 rupees. This is I would say a fairly higher price point. काफी अच्छा प्रीमियम है ब्रांड का as opposed to any other pickles that you would make at your home or find from a brand like Pachranga or let's say Nylons, जो कि टिपिकली 300-400 रुपए किलो पे अचार बेच रहे होते हैं. पर अगेन उनके अचार बनाने के तरीकों में बहुत फर्क है, इंग्रेडिएंट्स सब बार होते हैं, उनके ऑयल्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं. हम लोग अचारों को डिफरेंटली बना रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटली कॉस्ट को ड्राइव अप करती हैं. करेक्ट. तो हम लोग उस केस में उस पे प्राइस ऑब्जेक्शन कह रहा हूँ, एक अच्छा खासा हमारे पास रिस्पॉन्स है लंबा चौड़ा कि लाइक पहली बात तो प्राइस ऐसी क्यों है जो हम अभी आपको ऑफर कर रहे हैं, एंड ओवर टाइम वी हैव टेकन केयर कि हम प्राइसेस को कम करें. तो टुडे द प्राइस एट विच वी सेल द अचार is about 20% less than what we started out, and even going ahead we want to bring another 20-25% reduction in the average selling price of our pickles. So that is something that again is a feedback that we an example of negative feedback that we listen to very closely and try to improve ourselves on. So that is how I would characterize it as ki be to your original point ki be as authentic as you can, to share what you are bringing to the marketplace uniquely, and then just listen closely to what your customers have to say about it to adapt. That is how you should go about it, I would say. गॉट इट. सो एक अपन सिचुएशन लेते हैं. इट्स डिफरेंट देन मार्केटिंग थोड़ा सा. सपोज यू आर हैविंग अ कॉफी विद योर यंगर सेल्फ, राइट, जो कि अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एज एन मार्केटर. सो व्हाट आर सम entrepreneurials or some wisdoms that you would like to give to that younger self? Um so
आई वुड से जो कन्विक्शन अभी मैं आपको बता पा रहा हूँ अबाउट बीइंग एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर आइडियल्स, these were not something that we were always sure of. हम लोगों ने of course we had like an initial hunch कि इस तरीके से काम करना चाहिए, but for example in very early brands that we used to work with, typically negative feedback आता था, उसके केस में हमारे पास इतने well articulated responses नहीं थे. In I would say we were more impulsive around it. मैं अपनी personal conversations में भी मैं वो बोलूँगा कि instead of being thoughtful about why the person is saying what they're saying and what does it actually mean, instead of what, तो अगर face value पे कोई आपको abuse कर रहा है, कोई strong words use कर रहा है, तो instead of just hiding the comment या फिर abusing back on तो अभी for example I see कि a lot of people say with a lot of pride कि मैंने customer को fire कर दिया, which is something that we also did proudly again 2017 2018 में, but to understand why that feedback was there, and just to be able to stand your ground, be confident in yourself, and just present your side of the argument, and then at the same time try to say कि अगर कोई बंदा aggrieved है तो क्यों, कहाँ से वो grievance आ रहा है, and उसको आप किस address कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसको clearly बोल पाना, and वो negotiation respectfully करना. I think that is a fundamental tenet, I would say. So just be more confident in yourself, and be more empathetic, uh, be less impulsive, try and understand where the other person is coming from. सो झाजी की अपन अब क्या कैंपेन्स देख सकते हैं, क्या आने वाला है झाजी में एज इन मार्केटिंग तो पर्सपेक्टिव, या क्या होने वाला झाजी स्टोर में अब हम झाजी स्टोर में हम लोग अभी what we are focused on right now, तो अभी आज की डेट में हम लोग लाल मिर्ची का भरवा का सीजन होता है, विंटर सीजन लाल मिर्ची भरवा का है. लास्ट ईयर हम लोगों ने लाल मिर्च लहसुन मिक्स एक चटनी नई लॉन्च करी थी. वी आर फोकसिंग इस साल हम लोग और ज्यादा बड़े क्वांटिटी में वो अवेलेबल कर पाए. ये लहसुन चटनी इज मोर लाइक मोमोज के साथ आप जो चटनी खाते हो उसका एक रिप्लेसमेंट है. So I would say that is something that we are very excited about this year again. In terms of other than pickles and chutneys, later this year you will also see us dabbling into new categories. तो हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में, अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में, हम लोगों ने कुछ नए मसाला ब्लेंड्स तैयार किए हैं. तो कस्टमर्स का एक रिस्पॉन्स आता था कि आपका अचार का स्वाद बहुत यूनिक है, या फिर ये हमारे को घर की याद दिलाता है. मैं अपनी डेली जो खाना मैं बना रही हूँ या बना रहे हैं घर पे, उसमें हम लोग कैसे इस स्वाद को ला सकते हैं. तो वहाँ से उस इनसाइट के अराउंड हम लोगों ने मसाला ब्लेंड्स पे काम किया है. गरम मसाला, नए तरीके के अचार आने वाले हैं बेसिकली. नए तरीके के अचार नहीं, अचार तो हमारे पास अभी 20-22 तरीके के अचार हैं. हम लोग मोरलेस वही अचार पे रहेंगे. ओवर टाइम हम लोग नए अचारों को ट्राई आउट करते रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो कटहल एक अचार है जिसपे हमने पहले 2 साल में हमारे बैचेस उतने अच्छे नहीं बने थे, तो इस साल लेकिन पिछला लास्ट बैच हमारा अच्छा रहा है, तो अब वी आर गोइंग टू डबल डाउन ऑन दैट. जैसे मैंने कहा लाल मिर्च लहसुन मिक्स चटनी एक नया फ्लेवर है हम लेकर आए. तो इस तरीके के आई वुड से 20-22 फ्लेवर्स से हम लोग मे बी 4 से 5 नए फ्लेवर्स लाएंगे, या पुराने फ्लेवर्स को रिटायर करके उनको रखेंगे. बट हमारे अचार चटनी का पोर्टफोलियो विल सी एट 2025, बट नए प्रोडक्ट्स इटसेल्फ. तो मसाला ब्लेंड्स, जैसे मैंने कहा गरम मसाला का मिक्स, जो आप मसाले के पाउडर्स खरीदते हो MDH का या एवरेस्ट का, उस तरीके के मैं मसाले ब्लेंड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आप अपने खाने में डाल सकते हो. देन इसके अलावा भी हम मखाना की खीर मिक्स पे काम कर रहे हैं. देन मखाना के खीर मिक्स इज लाइक कि आप खीर का ड्राई मिक्स है, उबले दूध के साथ आप उसको मिक्स को डालो, थोड़ी देर रखो, और एंड योर खीर इज तैयार. देन यू कैन बेसिकली रेफ्रिजरेट इट एंड ईट ओवर डेज. मतलब अपन प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके. सो ऐसा लग रहा है कि आप लाइक काफ़ी सारे स्टार्टअप्स बनाते हैं एक के बाद एक. इट सीम्स लाइक एन एनर्जी. सो अभी क्या आपके एज अ फ्यूचर गोल्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं, कितनी और ब्रांड्स आने वाली हैं, क्या होने वाला है आगे? तो मेंच वेंचर्स के साथ हमारा गोल है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक ऑपरेटर होल्डिंग कंपनी की तरह मल्टीपल ऐसे बिजनेसेस रन करना चाहते हैं जो कि इंडिया की डिफरेंट कल्चरल पॉकेट्स में से वहाँ की यूनिक चीज़ों के अराउंड ब्रांड बिल्ड हों. तो जैसे मैंने बताया मिथिलांचल के खान पान, उसी तरीके से लेट से हिमाचल में सेब उगते हैं, अगर सेबों का कोई प्रोडक्ट हो, या फिर फॉर दैट मैटर लेट से अगेन बिहार में ही भागलपुर की साड़ी फेमस है, तो अराउंड उसके अराउंड ब्रांड. एक आइडिया, 2 आइडियाज जिन पे अभी हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जर्मिनेट कर रहे हैं. वन इज मधुबनी पेंटिंग्स, नॉट मधुबनी पेंटिंग्स पर से, पर इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग आर्ट फॉर्म्स हैं.
Hmm. तो उन आर्ट फॉर्म्स के अराउंड मेकिंग पेंटिंग्स एंड मेकिंग दैट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, अब आपके ऑफिस है, पीछे जो आपके पास वॉल है, Hmm. लाइक उस पे एक लाइफ साइज पेंटिंग विच कैन बी इधर, अगर अगर मैं मिथिलांचल में देखूँ तो ये मधुबनी का आर्ट फॉर्म है, पर आई एम गेसिंग बाकी, सो फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट है, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट है, इस तरीके की आई थिंक कलमकारी पेंटिंग्स हैं। तो Yes. डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स आर्ट फॉर्म्स के अराउंड हम लोग पेंटिंग प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से बना सकते हैं जो कि लोग अपने घरों में, ऑफिसेज में लगाना चाहें, टू सेलिब्रेट दैट आर्ट फॉर्म। काफ़ी काफ़ी बड़ा और लंबा विजन है। आई मीन आने वाले 10 years में काफ़ी सारे ब्रांड्स प्रोबेबली वुड पार्टिसिपेट विद बेंच। Yes, I certainly hope so that, and I'm working towards it. ग्रेट। सो लास्ट माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वुड बी कि आप तीन चार स्टार्टअप्स के आई थिंक सो को फाउंडर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्किलविल, सूक्ष्म, बेंच, एंड मैनी मोर। सो व्हाट इज द डिफरेंट थिंग जो जो आप हमें सिखाना चाहें टू बिल्ड एंड स्टार्टअप? तो जो आपने बिजनेसेस मेंशन किया, स्किलवेल वाज माय फर्स्ट बिजनेस आउट ऑफ आईआईटी दिल्ली। ये एजुकेशन का बिजनेस था। दिस वाज अ करियर काउंसलिंग प्रोडक्ट। इसमें हम लोग एक असेसमेंट लेते थे अराउंड स्किल एंड विल। तो स्किल तो आपको नॉर्मल जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिस तरीके का कैट होता है या कोई कोई भी जॉब का टेस्ट होता है। विलिंगनेस वाली साइड पे हम लोग सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट लेते थे टू असेस पीपल ऑन देयर प्रोफेशनलिज्म, अटेंशन टू क्वालिटी, कम्युनिकेशन, इस तरीके की चीजें जो सॉफ्ट स्किल्स कही जाएंगी। तो स्किलवेल के अराउंड हमारी आई वुड से उस बिजनेस से सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि मैंने वो प्रोडक्ट बनाया था अपने लिए जब मैं आईआईटी में था और मेरे पास 4 डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज थी। मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं किस पे अपना ध्यान दूँ। लेकिन फिर मैं उस प्रोडक्ट को बना के आई वेंट टू टिपिकली टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, जहाँ पे प्रॉब्लम ही बहुत डिफरेंट थी कि आप कि जहाँ पे जॉब्स ही नहीं है वहाँ पे कौन सी जॉब, तो मतलब इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट सेम ऑडियंस। तो अंडरस्टैंडिंग हु यू आर बिल्डिंग इट फॉर एंड finding the right market, and when you finding that market, retiring that product early, killing that product early, I think that was the main learning from that business. सूक्ष्म के केस में, सूक्ष्म वाज अ बिजनेस, जैसे मैंने कहा, माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस के अराउंड हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टिंग देते थे। तो सूक्ष्म, अगेन स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। एंड सूक्ष्म का मतलब, सूक्ष्म again is a Sanskrit slash Hindi word which means छोटा. So it was focused on working with micro, small and medium businesses and helping them in operations and supply chain. So that उस business में I would also say कि सूक्ष्म as a brand name was something that we didn't do a good job at branding that thing around, जितना हम लोगों ने झाजी स्टोर के साथ किया फॉर एग्जांपल। तो सूक्ष्म के अराउंड मेरे पास लर्निंग सबसे बड़ी यही है कि वन, when we are working on consulting enterprise, you need to build more brand, more knowledge work. हम लोग अभी उसमें मोर और लेस हम सेल्स और डिलीवरी के साइकिल में फंसे रहे कंसल्टिंग बिजनेस में कि या तो हम सेल्स कर रहे हैं या फिर हम क्लाइंट प्रोजेक्ट डिलीवरीज कर रहे हैं, बट उस पूरे ब्रांड का, उस पूरे उसकी उस बिजनेस की मार्केटिंग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं हमने दिया। तो दैट इज, आई वुड से, मार्केटिंग हमारे उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग स्वीट भी नहीं था, बट वी गुड एट ऑपरेशंस। तो आई वुड से दैट इज व्हाट आई लर्नड ऑफ फ्रॉम सूक्ष्म। एंड मेंश के केस में that is all we focused on, building the name, selecting a good name that resonates well with us, and then just like doing everything that goes well with those qualities. So that is what we have done. I would say lesson इस sense में रहेगा कि just be very sure of why you are starting a business, what you are starting this business, what you are building, who you are building it for, and just continuing to do that confidently. Whether or not you receive, let's say, don't go for, let's say, flashy trends in the market necessarily, unless and until it resonates really deeply with your purpose. So your purpose should be the guide. Again, I'll go back to something that I said in the beginning of the podcast. We start with why, and that why should mostly inform most of the things that you do in the business. That will make sure कि आपका business एक closely focused, एक well stitched, एक strong brand की तरह निकल कर आए. And I think that's the most powerful lesson that I can share right now from all of these journeys. ग्रेट, ग्रेट। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऐश्वर्या। काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स हमें जानने को मिले एज अ मार्केटर।